Hello students, I Shaheen Kapasi, your mathematics teacher, welcomes you to my second lecture of your chapter number 2, Shapes and Angles. But before starting our today's session, I just want to recall your previous session, that what we have studied in our previous session. We have seen some topics, that is, what are shapes, classification of shapes, 2D and 3D shapes, what are polygons, list of polygons, open and closed shapes, what are angles, and different types of angles. These all topics as learning outcomes we have seen in our previous session. And with the help of that all topics which we have discussed in our previous session, now we are going to start our today's session from your Math Magic textbook, chapter number 2, Shapes and Angles, and that all topics which we have discussed in our earlier session will help you to understand this chapter more nicely. So let's start. Chapter number 2, Shapes and Angles. Rohini and Mohini are twin sisters. They love doing the same things. One day, when they were making shapes with matchsticks, Shaila gave them a challenge. Now here, Rohini and Mohini, they both are twin sisters. So as you know, what twin sister almost do? They do same things. So that only is given here, that Rohini and Mohini are twin sisters and they love doing the same things. Now what happened? One day when they were making shapes with matchsticks, what they had done? They were making shapes with matchsticks. Now matchsticks, do you know what do you mean by matchsticks? मैचस्टिक्स जो है वो हम लोग जो है मैचिस की जो कांडी होती है, यहाँ तीलिया बोलते हो आप उसको बोलते हैं, और उसको लेके वो मैचस्टिक्स को लेके रोहिणी और मोहिनी जो है कुछ शेप्स बना के खेल रही थी. बट मैचस्टिक्स इज़ वेरी हार्म टू यू. मैचस्टिक्स से हमको खेलना चाहिए नहीं, मैचस्टिक्स हमको हार्म पहुंचा सकती है. सो वी डोंट हैव टू प्ले विथ मैचस्टिक्स. But it's okay, they were playing and they were making some shapes, they were doing some mathematical things, so it's okay. So what is given in further? Shaila gave them a challenge. अब क्या हो रहा है? जब वो लोग खेल रहे थे रोहिणी और मोहिनी, तो उसके साथ शैला भी जो है साथ में थी, और उसने क्या किया, जब वो लोग प्ले कर रहे थे तो शैला ने उसको एक चैलेंज दिया. What Shaila gave them a challenge? That Rohini will make a shape, Mohini has to make the same without looking at it. But she can ask questions. What challenge Shaila gave them? That Rohini will make a shape. Rohini जो है एक shape बनाएगी. Mohini has to make the same without looking at it. अब क्या बोला है यहाँ पर? रोहिणी जो है एक शेप बनाएगी, मोहिनी को है जो सेम शेप रोहिणी बना रही है वैसा ही सेम शेप मोहिनी को बनाना है. बट द चैलेंज इज विदाउट लुकिंग एट इट. क्या चैलेंज दे दिया गया यहाँ पर? मोहिनी हैज़ टू मेक द सेम बट विदाउट लुकिंग एट इट, बट शी कैन आस्क क्वेश्चन. अच्छा, इसमें अभी अच्छी चीज़ क्या बताई है कि भले ही वो लोग बिना देखे बनाना है उनको एक दूसरों को शेप्स, बट एक दूसरे को वो लोग क्या कर सकते हैं? दे कैन आस्क क्वेश्चन. शी कैन आस्क क्वेश्चंस. वो लोग क्वेश्चंस एक दूसरों को पूछ सकते हैं. सो आगे देखते हैं कि मोहिनी और रोहिणी ने उनको क्या आंसर किया. दे आंसर दैट ओह
दैट इज सो सिंपल. अब रोहिणी और मोहिनी को जो है ये शैला ने जो चैलेंज दिया है, व्हाट शैला गिव देम अ चैलेंज, दे गॉट दैट चैलेंज वेरी सिंपल. रोहिणी और मोहिनी को वो दोनों चैलेंज बहुत ही सिंपल लगा. ओह, दैट इज सो सिंपल, दे सेड. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस. नाउ हियर रोहिणी मेड दिस शेप. As you are looking in the picture, three girls are there. One is Rohini and Mohini, and standing girl is Shaila, and she is giving them a challenge. And now see how they sit. रोहिणी और मोहिनी जो है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं. जैसे शैला ने चैलेंज दिया था कि उनको एक दूसरे के शेप देखने नहीं है, इसलिए रोहिणी और मोहिनी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं. और क्या कर रहे हैं, मोहिनी जो है वो रोहिणी को कुछ क्वेश्चंस कर रही है, और क्या कर रहे हैं वो लोग अपने शेप्स बनाना स्टार्ट कर रहे हैं. और शैला जो है उनको चैलेंज दी थी तो वो उनको गाइड कर रही है. नाउ लेट अस सी. नाउ हियर मोहिनी आस्क्स सम क्वेश्चंस टू रोहिणी एंड ट्राइज टू मेक शेप एज पर द रोहिणी मेड. नाउ हियर they are discussing something. Let us see what they are discussing. First thing, now here रोहिणी made this shape. अब यहाँ पर जो शेप दिया गया है ये रोहिणी ने बना लिया. Which shape रोहिणी made? रोहिणी made this shape. कौन सा शेप रोहिणी ने बना लिया? ये वाला शेप जो है वो रोहिणी ने बना लिया. So we will give here R. Means रोहिणी ने ये वाला शेप बना लिया. Then let's see what Mohini asked. Mohini, is it a closed shape or an open shape? As you know that Shaila gave them a challenge that they have to make same shape, but they can't see. But instead of that, she have gave them a challenge that they can't see the shapes, but they can ask questions. दोनों एक दूसरे को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो रोहिणी क्या कर रही है, रोहिणी विद द हेल्प ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस शी इज ट्राइंग टू मेक द सेम शेप एज मेड बाय रोहिणी. सो मोहिनी आस्क्ड, इज इट अ क्लोज शेप और एन ओपन शेप? नाउ लेट अस सी रोहिणी व्हाट रोहिणी आंसर्ड. रोहिणी आंसर्ड दैट इट इज अ क्लोज शेप. देखो ये वाला जो शेप है रोहिणी ने बनाया है वो क्लोज शेप है. सो आवर आंसर इज येस. And we have studied this closed and open shape topics in our previous session. That what do you mean by open and closed shape? Now what is given? Mohini. How many sides are there? Now Mohini is asking another question to Rohini, that you have answered me that it is a closed shape. But now how many sides are there? The shape which you have made, how many sides are there in that shape? So let us see what Rohini answered. It has 6 sides. मोहिनी ने उसको क्वेश्चन किया. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मोहिनी का कि आपने मुझे बताया कि जो शेप है वो क्लोज शेप है. तो मोहिनी ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि आपने जो साइड्स बनाई है, जो शेप बनाया है उसकी कितनी साइड्स बनाई है आपने? तो रोहिणी ने क्या आंसर किया, इट हैज़ 6 साइड्स. क्या बोला उसने कि मैंने जो शेप बनाया है उसकी साइड्स कितनी है? 6. सो लेट अस सी. 1 2 3 4 5 एंड 6. सो हर आंसर इज ट्रू. हमने देखा कि साइड्स कितनी है, टोटल 6 है. सो लेट अस सी कि अब आगे जो है वो मोहिनी ने क्या किया. विद द हेल्प ऑफ asking questions, now finally मोहिनी made this. अब मोहिनी ने क्या किया, अपना शेप तैयार कर लिया. now here which shape मोहिनी has made? कौन सा शेप मोहिनी ने बनाया? see here, this is the one made by मोहिनी. ये किसने बना लिया? मोहिनी ने बना लिया. now what is given? now here we have seen that Mohini asks some questions to Rohini and tries to make this shape. Now what we have to do? We have to give some answers to her. What their discussion they have made, we have to give some answers related to. What answers we have to give? Is it a closed shape?
वी हैव टू गिव आंसर्स कि जो मोहिनी ने जो शेप बनाया है, इज इट अ क्लोज शेप? क्या मोहिनी ने जो ये शेप बनाया है वो क्लोज शेप है? तो हम लोगों का आंसर क्या आएगा यहाँ पर? यस, क्योंकि ये जो मोहिनी ने ये वाला जो शेप बनाया है वो कैसे है? क्लोज्ड शेप है, सब जगह से बंद किया हुआ है. सो आवर आंसर इज यस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज इट हैव 6 साइड्स? क्या इसकी 6 साइड्स है? जैसे रोहिणी को मोहिनी ने पूछा था कि आपने कितनी साइड्स बनाई है, तो रोहिणी ने आंसर किया था मैंने 6 साइड का फिगर बनाया है. तो उसी को लेके मोहिनी ने भी अपना फिगर ड्रॉ किया. तो चलो हम लोग काउंट करके देख लेते हैं कि जो मोहिनी ने शेप बनाया है क्या उसका भी 6 साइड्स बना है. 1 2 3 4 5 6. सो दिस आंसर इज ऑल्सो येस. नाउ लुक व्हाट इज गिवन फर्दर. अब आगे क्या बोला है, लेट अस सी. But it is not the same as one made by Rohini. Oh, now what happened? Instead of asking questions to Rohini about is it a closed shape or an open shape, so Rohini answered that it is a closed shape. Then again Mohini asked the question, another question to Rohini that how many sides are there. Then Rohini answered that it has 6 sides, and then Mohini made this. But then also what happened? It is not the same as one made by Rohini. जो फिगर रोहिणी ने बनाया है और जो फिगर मोहिनी ने बनाया है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग सम क्वेश्चंस ऑल्सो, दोनों के शेप्स जो है वो अलग बने. देयर शेप्स आर डिफरेंट. सो व्हाट हैपन नाउ? मोहिनी टेक सम डिसीजन. मोहिनी ने क्या किया? कुछ डिसीजन लिया. क्या डिसीजन लिया? सो मोहिनी ट्राइड अगेन. अब मोहिनी ने क्या किया? फिर से बनाना स्टार्ट किया. देखो हम लोग भी क्या करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है हमारे सामने, कुछ ऐसी पोजीशन हमारी कभी कभी हो जाती है कि जो चीज़ को एक बार करने से हमको जो है वो चीज़ में कामयाबी नहीं मिलती है. सो व्हाट वी डू, वी ट्राई टू डू. जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, हम लोग कुछ एक आंसर हमारा लर्न कर रहे हैं, एनी सब्जेक्ट यू कैन टेक, इफ़ यू आर टेकिंग साइंस सब्जेक्ट. तो अगर आपको एक आंसर लर्न नहीं हो रहा है तो आप क्या एक बार उसको लर्न करके छोड़ दोगे? नहीं. एटलीस्ट यू ट्राई फॉर 2 or 3 टाइम्स दैट इट मे बी लर्न. हम लोग क्या करते हैं, उसको समझ के पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम लोग उसको जो है रिवाइज करते हैं 2 से 3 बार. तो क्या होगा, आपको जो है वो लर्न हो जाए आंसर. सो हम लोग क्या उसको हार मान लेते हैं? नहीं, वी ट्राई टू डू. सो दैट ओनली थिंग हियर मोहिनी इज डूइंग, शी इज ट्राइंग अगेन टू draw the same shape as one made by रोहिणी. सो नाउ लेट अस सी कि फिर से जब मोहिनी ने ट्राई किया तो क्या उसका शेप जो है वो मोहिनी की तरह बन पाया. लेट अस सी. But it is not the same as one made by Rohini, so Mohini tried again. This is what she made. Now here another figure made by Mohini. अब ये मोहिनी ने अपना जो है सेकेंड फिगर बनाया. This is what she made. Now here ये वाला फिगर जो मोहिनी ने अभी सेकेंड वाला बनाया है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट फिगर जब मोहिनी ने बनाया था उसको लेके रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए अभी, वैसे ही हम लोग जो है ये वाले फिगर को भी लेके हमारे नेक्स्ट पेज नंबर 17 पे जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे. सो लेट अस सी. Is it a closed shape with 6 sides? Now here what is asking कि जो मोहिनी ने अपना सेकेंड शेप बनाया है, हम लोगों ने देखा कि मोहिनी ने जो सेकेंड शेप बनाया है क्या उसकी 6 साइड्स है. सो सी इन द डायग्राम, पेज नंबर 16 जो है वहाँ पर देखो दिख रहा है आपको डायग्राम, क्या इसकी 6 साइड्स है. सो लेट अस सी, वी कैन काउंट एंड वी कैन आंसर इट. 1 2 3 4 5 6. ये अगर आप लोग ऐसे देखोगे तो ये एक ट्रायंगल हो गया, यहाँ से हम लोग ने ऐसे देखा तो ये दूसरा ट्रायंगल हो गया. तो ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है. 1 ट्रायंगल यानी कि एक ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है.
तो नेक्स्ट ट्राइंगल उसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो 3 + 3 कितना होगा 6, और यहाँ पर ये मीटिंग पॉइंट है उनकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम लोग ने देखा कि 3 और 3 कितना होता है 6, वन ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, वैसे यहाँ पर 2 ट्राइंगल जो है एक दूसरों के साथ क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। सो हियर 6 साइड आंसर इज राइट, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा आंसर लिख देंगे यस। देन अनदर क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, इज इट द सेम एज वन मेड बाय रोहिणी। हम लोगों को ये शेप देख के बताना है कि जो रोहिणी ने शेप बनाया है वो शेप और जो मोहिनी ने जो नेक्स्ट शेप बनाया है, सेकंड वाला फिगर जो बनाया है वो शेप, दोनों का जो शेप है रोहिणी और मोहिनी का, क्या वो दोनों के सेम शेप बने हैं? सो नो, बिकॉज रोहिणी ने जो है वो कुछ इस तरह का शेप बनाया था, और मोहिनी ने जो है वो कुछ इस तरह का शेप बनाया है। ओके, तो क्या ये दोनों शेप सेम है? सो आवर आंसर विल बी नो, क्योंकि ये दोनों शेप क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग है। नो डाउट दोनों शेप क्या है, क्लोज शेप है। नो डाउट दोनों की साइड्स भी 6 है, बट क्या हो रहा है, दोनों की जो शेप है वो क्या है, अलग है। So now let us see what is given in your further page. Sorry, in your further question. Next question is there some way to say in what way these shapes are different? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम लोग बता सके कि ये शेप्स क्या है, डिफरेंट है? So do you have any idea that how we can say that these shapes are different? कैसे ये शेप डिफर करते हैं एक दूसरे से? Yes, we can say. How we can say? We can say this by proving that the shapes are different in the matter of measurement of angles. क्या बोला है? हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये शेप्स डिफ़र करके हमको बताना है, इसको प्रूव करना है कि ये शेप्स जो है डिफरेंट है, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? दैट वी कैन प्रूव इन द मैटर ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को लेके हम लोग बता सकते हैं कि ये दोनों शेप जो अभी बनाए थे रोहिणी और मोहिनी ने, दोनों के शेप क्या है, अलग है। नॉट लेट अस सी व्हाट इज गिवन। मोहिनी ट्राइड अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप्स। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया, हम लोगों को अगर एक आंसर लर्न नहीं हो रहा है तो हम लोग उसको 2 से 3 बार ट्राई करेंगे। कुछ लोग तो जो है गुड स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दे ट्राई एटलीस्ट फॉर 5 to 10 टाइम्स। कोई लिख के लर्न करता है, कोई स्पेलिंग्स लर्न करते हैं जिनको मिस्टेक्स जाती है, तो दे एटलीस्ट ट्राई टू डू दैट थिंग्स। और कुछ लोग जो है वो जब तक उनको सक्सेस में नहीं मिलती तो वो लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू डे डू द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। So here also Mohin is trying to get the same shape as one made by Rohini, but she is not getting the same shape as one made by Rohini, and she is trying again and again, but she is getting the different shapes. So that only is given here, that Mohini tried again but got different shapes. जितनी बार मोहिनी ने शेप बनाया उतनी बार क्या हो रहा है, शेप जो है वो डिफरेंट बन रहे हैं। जब उसने क्वेश्चन पूछा था कि भाई क्लोज शेप है कि ओपन शेप है, रोहिणी ने बता दिया कि क्लोज शेप है। जब उसने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि जब साइड्स कितनी है, तो रोहिणी ने आंसर किया कि 6 साइड्स है। तो वो दोनों चीज़ को ध्यान में रख के ही मोहिनी जो है अपने शेप्स बना रही है, बट अगेन एंड अगेन ट्राइंग, देन ऑल्सो शी इज़ नॉट गेटिंग द सेम शेप एज वन मेड बाय रोहिणी। सो लेट अस सी क्या दिक्कत हो रही थी। गैस एंड मेक 2 मोर शेप्स मोहिनी कुड हैव मेड। यहाँ पर क्या बोला है, आपको भी क्या करना है, गैस करना है कि ऐसे और कौन से 2 शेप मोहिनी ने बनाए होंगे, एंड आपको भी क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है। देन व्हाट इज गिवन, मोहिनी इज नाउ टायर्ड ऑफ ट्राइंग एंड आस्क्ड शैला नाउ व्हाट टू डू। अब क्या हो गया, मोहिनी अब जो है वो टायर्ड हो गई है बाय ट्राइंग एंड आस्किंग all the questions to Rohini, and then also she is not getting the same shape as one made by Rohini. Now Mohini is now just tired and she is now trying and asking Sheila that what to do.
जब उन लोगों ने जो है चैलेंज जब उनको दिया गया था रोहिणी और मोहिनी को, तो उन लोगों ने क्या बोला था, ओ डैट इज़ सो सिंपल। उन लोगों ने चैलेंज को इस तरह से एक्सेप्ट किया था कि शैला ने जो चैलेंज दिया है डैट इज़ सो सिंपल। बट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, अब जो है ये चैलेंज उनको जो है हार्ड लग रहा है। उनसे अभी जो है ये चैलेंज एक्सेप्ट किया तो है उन लोगों ने, बट अभी भी शेप नहीं बन रहे हैं। सो नाउ मोहिनी इज टायर्ड एंड शी इज आस्किंग शैला डेट व्हाट टू डू नाउ। सो शैल वी सी। अब सजेशन जो है शैला ने उनको क्या दिया। नाउ शैला इज गिविंग अनदर सजेशन टू मोहिनी दैट व्हाट शी हैव टू डू। नाउ व्हाट इज द शैला सजेशन? Shella is saying that if you ask for the angles that the matchsticks make at the corners, you can do it. यहाँ पर अभी शैला ने क्या बोला, सजेशन दिया शैला ने किसको, मोहिनी को, दैट अगर आप लोगों ने इफ़ यू आस्क फॉर द एंगल्स दैट द मैचस्टिक्स मेक एट द कॉर्नर यू कैन डू इट। अगर आप लोगों ने जो है उसके लिए एंगल्स के बारे में पूछ लिया होता एक दूसरों को, तो क्या होता, आप लोग जो है शेप्स आपके बना सकते थे। सो नाउ व्हाट मोहिनी आंसर, ओह सो लेट अस लुक फॉर द एंगल्स। अब मोहिनी ने क्या बोला, बार बार सेम चीज़ करने के बावजूद भी जो है मेरे सेम शेप नहीं बन रहे हैं। सो नाउ लेट अस फॉलो द शैला सजेशन। शैला ने जो सजेशन दिया है वो हम फॉलो करके उसको क्या करें, अब एंगल्स को लेके हम लोग क्या करेंगे, सेम शेप बनाएंगे। सो मोहिनी स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग with the help of Shaila's suggestion by looking for the angles. Now let us see what is given. Look at the angles marked in these shapes. Can you see the difference? अब यहाँ पर आपको जो है हम लोगों ने देखा कि जो shapes है अलग अलग, कुछ रोहिणी ने बनाए हुए हैं और कुछ मोहिनी ने बनाए हुए हैं। ये फर्स्ट शेप जो था वो रोहिणी ने बनाया था। दिस शेप इज मेड बाय रोहिणी। मोहिनी ने जो है फर्स्ट शेप ये वाला बनाया है, दैट वी विल गिव हियर M1। एंड सेकेंड शेप ये मोहिनी ने बनाया था, दैट वी विल गिव हियर M2। नाउ हियर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मार्क सम एंगल्स इन दिस शेप्स एंड वी हैव टू मेक कंपेयर दिस शेप्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दिस शेप्स, कि किस तरह से हम बता सकते हैं कि ये सारे शेप्स जो है वो अलग है। वी हैव सीन दैट इन फर्दर क्वेश्चन वी हैव स्टेट दैट in the matter of measurement of angles we can say that these shapes are different. So that only we have to do here, and we have to mark some angles in these shapes and we have to find the difference between these shapes. So let us start. Here you can see that this angle and this angles, this angle and this angle, this opposite angles are equal, and in this shape here some angles are small, here some angles are big. Here also this opposite angles are equal. But what happens? 1, 2 and 3. Both all the three shapes are different. They are not one as the made by Rohini or they are not one as made by Mohini. तीनों शेप जो है वो एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं। एंगल्स से भी हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये सारे एंगल्स जो है वो एक ही शेप में एक दूसरे से ऑपोजिटली इक्वल है, बाकी एक दूसरे के शेप। अभी आप लोग देखो यहाँ पर, तो फर्स्ट शेप आप ये ले लो और यहाँ पर ये ले लो। क्या यहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है? नो। यहाँ पर जो आप लोग देखोगे ये कॉर्नर का छोटा एंगल है, स्मॉल एंगल, हियर इट इज़ अ बिग एंगल। ये सारे एंगल्स जो है एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, दे आर नॉट एज द सेम। फिर हम लोग अगर ये है दूसरा पार्ट हमारा देखें तो ये वाला शेप और ये वाला शेप आप मैच करो। हियर ऑल्सो देर इज़ अ बिगर एंगल एंड हियर देर इज़ अ स्मॉल एंगल। सो आप लोग अगर यहाँ पर कंपेयर करोगे जब शेप्स को, तो एंगल्स के थ्रू आप बता सकते हो कि मैटर ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स यू कैन से दैट दिस शेप्स आर डिफरेंट। Now see what is given here. See how the matchsticks make a small angle. Now what is given, जैसे हम लोगों ने देखा अपने फिगर में, यहाँ पर रोहिणी और मोहिनी ने जो फिगर्स बनाए हैं, हम लोगों ने वहाँ पर क्या नोटिस किया कि कुछ एंगल जो है वो स्मॉल है, देन ए बिग एंगल, कुछ एंगल्स जो है वो बिग है, एंड अ बिगर एंगल, और कुछ एंगल्स जो है वो ज़्यादा बड़े हैं। दैट मीन्स अगर दो मैचस्टिक्स को लेके जब उन लोगों ने बनाए हैं अपने अपने फिगर, सो
अगर मैं बताऊँ आप लोगों को कि ये एक मैचस्टिक्स को लेके ये हो गया एक स्मॉल एंगल, ये हो गया थोड़ा बिग एंगल, फिर ये हो गया बिगर एंगल। तो ऐसे अलग अलग मैचस्टिक्स को लेके उन लोगों ने क्या किए हैं, अपने एंगल्स को फॉर्म किए हैं। बट उन लोगों ने क्या किया, एंगल्स के बारे में पूछा नहीं था, दैट्स वाई दे गेट कन्फ्यूज्ड। और अभी उन लोग क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, a small angle, big angle and bigger angle. Now Mohin is trying to make some shapes and she got that shape as one made by Rohini. So now what the moral of the story is now here, what they got the moral from this dialogue and from this discussion. हम लोग देखते हैं ना कि कुछ स्टोरी होती है तो जिसके पीछे एक मॉरल होता है जो हम लोगों को एक सीख देती है. तो नाउ हियर ऑल्सो they made some discussion and they got some moral from this discussion. What they got, wow, when the angle changes the shape changes so much. Now here what is the main thing they got from this all discussion, उन लोगों को क्या पता चला, that when the angle changes, जब भी angle change होते हैं, the shape changes so much. This moral you have to remember for your further studies also, and this will help you out in your further studies also. क्या बोला है यहाँ पर कि जब भी जो है एंगल्स चेंज होते हैं तो उनके शेप भी चेंज होते हैं. जैसे मैंने बताया आपको कि ये स्मॉल एंगल है, ठीक है, तो इसका शेप अलग है. ये थोड़ा सा बिग एंगल हो गया तो इसका भी शेप अलग हो गया. दिस इज़ अ बिगर एंगल एंड इसका भी शेप अलग हो गया. यहाँ पर से लेके मैं ये छोटे एंगल को लेके अगर मैं ऐसे काइट का शेप बना दूँ तो ये अलग शेप बन रहा है. थोड़ा सा बड़ा लेके ऐसे बनाऊँ तो इसका शेप अलग हो रहा है. ये बड़ा सा एंगल लेके ऐसे बनाऊँ तो इसका भी शेप अलग हो रहा है. दैट मीन्स what is the moral, that when the angle changes the shape changes so much. सो आप लोगों को ये बात बहुत ध्यान में रखनी है और ये आप लोगों को जो है आपकी फर्दर स्टडीज़ में बहुत ही काम लगने वाला है. सो होप दैट आप लोगों को ये जो है टॉपिक्स अच्छे से समझ में आया होगा. नाउ लेट अस सी what is given in your next page. Here is a practice time question given. Now here practice time में आप लोगों को क्या बोला है, यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिया हुआ है. इसमें आपको क्या करना है, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं बाय लुकिंग एट दिस डायग्राम. सो फर्स्ट प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द शेप एंड आंसर. हमको क्या करना है, ये शेप को लेके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन बाय लुकिंग दिस शेप. The angle marked in dash color is the biggest angle. Now we have seen that small angle, big angle and bigger angle. Now here looking at this figure, आपको क्या लगता है कौन सा जो एंगल है वो सबसे बिगेस्ट है. So here black color angle, see here black color angle is the biggest angle. So we will write here our answer black, क्योंकि जो है ब्लैक कलर का एंगल जो है वो सबसे बड़ा है. देन नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, आर द एंगल्स मार्क्ड विथ येलो इक्वल. नाउ हियर सम मोर फिगर्स आर गिवन. नीचे देखो आप लोगों को यहाँ पर रेड कलर के बॉक्सेस में आपको अलग अलग फिगर्स ड्रॉ किए हुए हैं, 4 फिगर्स दिए हुए. नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस फिगर्स एंड वी हैव टू आंसर सम क्वेश्चन. What is given, second A1 question, are the angles marked with yellow equal. क्या बोला है, येलो कलर के जो एंगल्स है वो इक्वल है. सो वी हैव टू गिव द आंसर. यस सी हियर, यहाँ पर ये जो है ये येलो कलर का एंगल आपको दिया हुआ है तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इक्वल है. सो आवर आंसर विल बी यस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, बी क्वेश्चन, आर दी एंगल्स मार्क्ड विथ ग्रीन इक्वल. अब जो ग्रीन कलर से मार्क किए हुए एंगल है, आर दी एंगल्स मार्क्ड विथ ग्रीन आर इक्वल, ये दोनों एंगल्स जो है एक दूसरे से इक्वल है. सो आवर आंसर विल बी यस, बिकॉज बोथ दी एंगल्स आर इक्वल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज गिवन, आर द एंगल्स मार्क्ड विथ ब्लू इक्वल. ये जो ब्लू कलर के मार्क किए हुए एंगल है, क्या ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है. सो आवर आंसर विल बी यस, क्योंकि जो है दोनों की जो है एंगल्स जो है ऑपोजिट साइड्स जो है दोनों के दो ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल है.
So we will write here yes. So very easily we have solved this practice time question. Now question number 3. 4 different angles are marked in 4 colors. Can you find other angles which are the same as one marked in red? Mark them in red. Do this for other colors. जैसे हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर जो ऊपर वाला जो है फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया है, वैसे ही आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड टू डैट ओनली वी हैव टू मार्क सम एंगल्स. कुछ सेम फिगर्स आपको दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, वी हैव टू मार्क सम एंगल्स. जैसे यहाँ पर आपको ग्रीन में मार्क किया हुआ एंगल है, तो वैसे ही सामने जो है उसके जो आपको फिगर दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, ये इससे रिलेटेड सेम है फिगर, ये इसका रिलेटेड सेम फिगर है, ये इसका रिलेटेड सेम फिगर है. बाय कंपेयरिंग दिस फिगर्स यू हैव टू मार्क सम एंगल्स एंड which are marked in red you have to mark them in red and do this for other colors also. this means अगर green में दिया हुआ है तो आपको भी green से मार्क करना है, जो ब्लैक से एंगल मार्क किए हुए वो आपको ब्लैक से मार्क करना है. ओके, सो दिस इज एन एक्टिविटी पार्ट एंड दिस यू हैव टू डू एट योर होम. ये आपको होमवर्क में करना है. आपको क्या करने हैं, इसके साथ में जो है आपको यहाँ पर जो ग्रीन कलर का एंगल दिया है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये सामने भी ऐसे ग्रीन कलर का एंगल मार्क करोगे विथ ग्रीन कलर. ओके, विथ ग्रीन कलर. यहाँ पर आपको रेड कलर का मार्क किया हुआ है, तो आप यहाँ पर भी जो है रेड कलर का मार्क करोगे. ओके, फिर आपको क्या बोला है, ये से फिर यहाँ पर येलो कलर का है तो यहाँ पर भी आप येलो कलर का मार्किंग करोगे. यहाँ पर ब्लैक कलर का है तो यहाँ पर भी आप ब्लैक कलर का करोगे. सो दिस होमवर्क पार्ट यू हैव टू डू एट होम so that your topic will be revised. Now till today what we have done, we have done our chapter number 2 shapes and angles from your math magic textbook, and topic we have taken that shapes with matchsticks, and with the help of closed and open shapes topics which we have discussed in our previous session, we have solved some questions, and there was a discussion between Rohini, Mohini and Shaila, and in that what moral of the story we get, we get that according to the matter of measurement of angles, we can say that the shapes differ. And according to that we have solved some practice time questions, and one homework also I had given to you. You have to solve this question at home and you have to do the same as in homework, and do revise these topics for which we have discussed today, and be ready for your next lecture. Till then, stay safe. Thank you.